Assalamu alaikum student. Lecture number 14, BS6 semester in organic chemistry. Let me discuss the topic physical properties of metallic carbonyls. First of all, we study the physical state of metallic carbonyls. These four metallic carbonyls like nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl, ruthenium pentacarbonyl and osmium pentacarbonyls are the liquids at ordinary temperature. But other carbonyl complexes are crystalline in nature, which have the sharp melting point and can be decomposed at low temperature. We can say that they have the low melting point. Number 2 property, solubility. All the metallic carbonyls are soluble in non-polar solvent except iron nonacarbonyl. ये जो हमारे पास कार्बोनाइल लिखा हुआ है, इसके अलावा तमाम जो कार्बोनाइल्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉलिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं. बट एक्सेप्ट दिस, all the carbonyls are less or more soluble in organic solvent like liquid hydrogen fluoride, liquid sulfur dioxide, liquid ammonia, etc. are the non-polar as well as organic solvent in which all the metallic carbonyls can dissolve easily except this carbonyl. Number 3 physical property is the paramagnetism behavior that can be shown by the vanadium hexacarbonyl V into CO whole hexa. तो ये हमारे पास vanadium hexacarbonyl है which show the paramagnetic behavior due to the presence of unpaired electrons and can be attacked from the tiny magnet or the small electromagnetic fields. But other carbonyls are diamagnetic in nature because they cannot be attracted by the tiny magnet or the small electromagnetic fields. The metals that are present in the metallic carbonyls are in the zero oxidation state. They have no charge, positive charge. They have the zero charge. That's why they are called as zero oxidation state of metals. In this carbonyl complex, carbonyl is the neutral ligand and vanadium is the metal. When the neutral ligands attach with the metal, that metal will be neutral, or we can say that they have the zero oxy state. उसकी जो ऑक्सी स्टेट होगी वो जीरो होगी. In the next, chemical property of metallic carbonyls, they have the different chemical properties, but the most important is the substitution reactions. Substitution reactions are those reactions in which one group can replace another group present in the compound. In these carbonyl complexes, carbonyl group may be replaced by the
other ligands like phosphorus trihalides, phosphorus dialkyls, phosphorus tertiary phosphorus tertiary alkoxides, sulfur dialkyls, tertiary alkylamines, etc. These are the ligands that can replace the carbonyl group. And the substitution reactions are some other ligands that may replace the carbonyl ligand from the metallic carbonyls are the benzene and cycloheptatriene. 7 कार्बन रखने वाला हमारे पास एक कंपाउंड है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग की फॉर्म में है और 3 इसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं. इन द नेक्स्ट, when we treated chromium hexacarbonyl from the photons, UV rays or the sunlight, because these reactions take place under the sunlight, they are called as photochemical oxidation reactions. Photochemical oxidation reactions because these reactions occur under the sunlight. When the sunlight strikes the chromium hexacarbonyl, one carbonyl is replaced and the carbonyl complex form as, यहाँ पे 6 कार्बोनाइल ग्रुप एज अ लिगेंड लगे हुए हैं तो 5 हो जाएंगे, एक कार्बोनाइल निकल गया. इन नेक्स्ट स्टेप, न्यू लिगेंड्स will be attached with the product, our product in this reactions in the presence of sunlight. ये भी सनलाइट के अंदर जो नया लिगेंड L है वो अटैच हो जाएगा इस प्रोडक्ट के अंदर जो फोटोकेमिकल एक्टिवेशन रिएक्शन के अंदर बना है. तो हमारे पास इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, क्रोमियम पेंटाकार्बोनाइल लिगेंड हो जाएगा. वो लिगेंड कोई भी हो सकता है जो हमने नीचे यहाँ पे पढ़ा है. इधर जो हमने लिगेंड लिखे हैं इनमें से कोई भी लिगेंड एक हो सकता है इस जगह पे लगा हुआ. आगे हम चलते हैं. आयरन पेंटाकार्बोनाइल जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो 2 कार्बोनाइल लिगेंड्स निकल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और ये पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसे हम आयरन ट्राइकार्बोनाइल कहते हैं. आयरन ट्राइकार्बोनाइल आगे रिएक्ट करता है फास्फोरस ट्राइअल्काइल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड, आयरन ट्राइकार्बोनाइल फास्फोरस ट्राइअल्काइल. तो यहाँ पे नीचे इसी तरह एक और कंपाउंड मैंने लिखा है आयरन नोना कार्बोनाइल. ये भी सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर 5 कार्बोनाइल लिगेंड यहाँ से निकल जाते हैं और आयरन टेट्रा कार्बोनाइल पहले बनता है. ये आगे मज़ीद रिएक्ट करता है टेट्रा नाइट्रोसाइल लिगेंड के साथ, न्यूट्रल लिगेंड के साथ हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है आयरन डाइकार्बोनाइल डाइनाइट्रोसाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड. नंबर 2 रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अनायनिक कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस. Anionic carbonyl complexes also called as carbonylate anion. It can be said mostly in this sense. These are the structures
that can remain in the form of anionic carbonyl complexes, mostly iron tetracarbonyl 2-ion, molybdenum pentacarbonyl chloride 1-ion, 1 negative ion, hydrogen आयरन टेट्राकार्बोनाइल 1-ion एक्सेट्रा। ये जो सारे के सारे हमारे पास कंपाउंड लिखे हुए नेगेटिव फॉर्म में है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अनायनिक कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस। डिफरेंट मेथड्स इन जो हमारे पास अनायनिक कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहला आज हम पहला ही सिर्फ मेथड पढ़ेंगे, बाकी जो हमारे पास मेथड हैं वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ मेटालिक कार्बोनाइल्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड और द नाइट्रोजन बेसिस लाइक अमोनिया और द पाइरिडीन etc. Here we know that this is the carbonyl complex, metallic carbonyl complex compound, which can be reduced within two phases in sodium hydroxide or in the ammonia when it is dissolved in the water, liquid ammonia. सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर जब ये हमारे पास रिड्यूस होता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है, यहाँ से 2 सोडियम मेटल एटम निकलते हैं, वो आके अटैच हो जाते हैं और हमारे पास एक कम्प्लेक्स अनाइन बन जाता है। सोडियम आयरन टेट्राकार्बोनाइल 2-ion 2 नेगेटिव आयन हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह ये जब अमोनिया लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस के अंदर ये इसकी रिडक्शन होती है, ये रिड्यूस होता है, तो इस तरह का हमारे पास कंपाउंड बना रहता है। हाइड्रो आयरन टेट्राकार्बोनाइल 1 नेगेटिव आयन कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। इस तरह ये कंपाउंड है जिसके अंदर 3 आयरन लगे हुए हैं, 4 कार्बोनाइल हमारे पास लिगेंड अटैच हैं, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब ये रिएक्ट करता है इथीन के साथ वाटर की प्रेजेंस के अंदर, तो वहाँ पे इथीन कार्बोनाइल लिगेंड को वहाँ से रिप्लेस करवा देती है। 3 पॉजिटिव हमारे पास आयन बनता है और उसके साथ नेगेटिव आयन कार्बोनाइल लिगेंड के साथ ही रहता है, तो ये न्यूट्रल बन जाता है। 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे डाई कोबाल्ट हेक्साकार्बोनाइल हमारे पास कंपाउंड है, जब रिएक्ट करता है 12 पाइरिडीन मॉलिक्यूल के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसके अंदर 2 हमारे पास स्फेयर्स होते हैं, पॉजिटिव स्फेयर नेगेटिव स्फेयर होता है। उसके अंदर देखें यहाँ पे कोबाल्ट हेक्सा पाइरिडीन 2 पॉजिटिव आयन और कोबाल्ट टेट्राकार्बोनाइल 2 नेगेटिव आयन, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं और ये हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बना रहे हैं। प्लस 8 कार्बोनाइल लिगेंड निकल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनाइलेट अनाइन बना सकते हैं या अनाइनिक कार्बोनाइल कम्प्लेक्स बनाते हैं। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।